Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let's continue with today's GFG Purish week. Today's question name is word break. It's a medium clarity question. Let us read the question and we can quickly solve this question with all the approaches possible. Given a string S and a directory N of words dictionary, तो हमारे पास एक string S है यार, एक डिक्शनरी है, राइट? हमें बस इतना बताना है कि क्या हम can this S be segmented into space separated sequence of dictionary words like यहाँ पे जैसे I like है, right? तो you can clearly see that I could be one of the word which can be space segmented with the another word that is like, and both of the words should be present in the dictionary. Similarly, in the second test case, I like Samsung, right? So you can fragment this particular S in three fragments. That is, one word would be I, the another would be like, and another would be Sam, and that's a sung. There would be two ways, right? Another, you can directly take I like Samsung. There would be two ways for the second test case. So eventually, if that is possible, we don't have to return all the number of ways. We just have to see if that is possible. Just return one, else zero, right? तो जब भी कोई डिक्शनरी की थिंग आती है, राइट, डिक्शनरी या फिर फोन डायरेक्टरी, तो सबसे पहला अप्रोच जो मेरे दिमाग को हिट करता है वो है ट्राई. मैं किसी और अप्रोच को पहले अप्रोच नहीं करता. अगर ट्राई से नहीं पॉसिबल होता तब मैं फिर सोचता हूँ कि अच्छा क्या कर सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे मेरे पास एक प्लेलिस्ट है यार ट्राई की, जहाँ पे इंसर्ट सर्च फोन डायरेक्टली फाइंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग विच वी हैव कवर्ड इन द पास्ट. तो मैंने इसको एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है. आप इसको देखना, अच्छे से समझ लेना दैट व्हाट इज एक्चुअली हाउ द ट्राई इज इम्प्लीमेंटेड, व्हाट इज द क्रक्स एंड इंट्यूशन बिहाइंड इट. इसकी प्लेलिस्ट मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन. सो वी विल बिल्ड अ ट्राई. वी विल बिल्ड अ ट्राई. और ट्राई क्या होता है यार? हमारे पास एक रूट नोड होता है. हर एक नोड के पास कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज होती है. फॉर आवर केस वी विल हैव 26 चिल्ड्रन, राइट, 0 to 26. ये एक्चुअली में 0 A को डिनोट करता है 26 Z को डिनोट करता है, राइट. सिमिलरली इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है एंड ऑफ वर्ड, राइट. एंड ऑफ वर्ड ट्रू और फॉल्स ये बूलियन पैरामीटर है. तो फॉल्स का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी वर्ड एंड नहीं किया है, करेक्ट. एक बार छोटा सा ड्राई रन देखते हैं, तो एक ट्राई बिल्ड करते हैं. देन वी कैन सी कि हम इसको कोड में कैसे लिखेंगे और ये काम कैसे करेगा. सो द फर्स्ट वर्ड इज आई. तो डेफिनेटली रूट नोड के पास कोई एंट्री नहीं है, तो मैं एक आई एंट्री बना दूंगा. Then another word, I'll go to another word, and you'll see it starts with L. So L is also another entry here. So I will L. Then I will make another character I, and I will make another character K. Then I'll make another character E. Now, since this E is the end of this particular string, so I will mark here as true. Similarly, this I was the only character in the first word, so I will mark this here as true. Correct? Okay. तो एल के बाद आई का कैसे ब्रांच दे पाए यार आप? क्योंकि हर एक नोड के पास दो प्रॉपर्टीज है यार, ए टू जेड की फील्ड्स है और एक दूसरी प्रॉपर्टी है एंड ऑफ वर्ड. सिमिलरली सैमसंग को बना देते हैं, तो रूट नोड के पास एस का कोई भी ब्रांच नहीं है, चाइल्ड नहीं है, तो वी विल मेक अनदर SAM एंड विल मार्क दिस एज ट्रू. अनदर वर्ड इज संग. सो एस है हमारे पास, रूट नोड हैज एस बट इट डू नॉट हैव यू, सो आई विल मेक यू फ्रॉम हियर, UNG. यहाँ पे मैं ट्रू मार्क कर दूंगा. सिमिलरली फॉर सैमसंग व्हाट कैन आई डू? आई कैन क्लियरली सी दैट SAM इज प्रेजेंट, सो आई विल स्टार्ट माय branching from here, SUNG, and I will mark this thing as true. What is the last entry we have? We have mobile, so M is not there any entry in the root node, so I will say MOB. Okay, what happened? Just a second. And then we have L and E. And I'll mark the last character of the mobile as true. So this is your entire try. This is your try. What will look like? You have to build this using the a custom data structure try node and an insert function. वो बहुत सिंपल है. आप वो पहली वीडियो आप देख लेना 8 मिनट की, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. What else? अब हमें सर्च करना है यार. तो यहाँ पे जो सर्च का जो फंक्शन हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. तो सर्च में क्या करते थे कि हमारे पास लेट्स से अगर सिर्फ एक वर्ड को सर्च करना है लाइक, राइट, तो मैं क्या करता, मैं अपने रूट नोड पे आता, मैं ट्रैवर्स करना शुरू करता कि एल क्या प्रेजेंट है. मैं कहता हाँ एल प्रेजेंट है. तो सब्सिक्वेंटली उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से मूव करते जाओ, तो LI के ही मिल जाता हमें. सर्च में हम और क्या करते थे, लेट्स से हमें सर्च करना होता LAKE लेक, राइट. तो मैं क्या करता, रूट नोड पे आता, एल प्रेजेंट है, ठीक है, मैं ए पे मूव करता, ए प्रेजेंट नहीं है एल के बाद, तो देन एंड देयर आई वुड हैव सेड कि फॉल्स, ये भाई सर्च नहीं, ये प्रेजेंट नहीं है. बट अनलाइक हमें एक वर्ड सर्च ना करके एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा, हमें पूछा है कि फ्रैगमेंट कर सकते हो या नहीं, राइट. तो मैं क्या करूंगा कि मैं सेम चीज कहूंगा, देखो यार आई लाइक है, राइट. तो मैं पहले पहले पे मूव करूंगा, मैं देखूंगा आई पे पहुंच गया और यहाँ पे एंड ऑफ द वर्ड भी मेरे को ट्रू मिल गया. तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लिखूंगा कि इफ एंड ऑफ वर्ड
इफ एंड ऑफ वर्ड, तब मैं क्या करूंगा, एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दूंगा, सेम फंक्शन को कॉल कर दूंगा, जिसमें मैं कहूंगा कि रेस्ट ऑफ द सबस्ट्रिंग को तुम ले जाओ यार, राइट। मतलब यू सर्च फॉर लाइक, इसको कोडिंग में आप सबस्ट्रिंग फंक्शन एंड बिल्ड फंक्शन आप वो यूज कर सकते हो, सबस्ट्रिंग आई कॉमा i+1, राइट। कुछ इस तरह से हम लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक के लिए मैं कॉल कर दूंगा, अगेन ये फंक्शन जाएगा रूट नोड पे और ये चेक करेगा कि एल प्रेजेंट है, एल प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, के और ई भी प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ये चीज क्या रिटर्न करेगी, ट्रू। और ये एंड ऑफ वर्ड तो ट्रू है ही, और ट्रू एंड ट्रू विल फाइनली रिटर्न यू ट्रू, राइट। अब इसका एक सूडो कोड देखते हैं एंड देन वी कैन ड्राई रन फॉर द सेकंड टेस्ट केस, ठीक है। मैं तुरंत से आपको एक कोड वॉक थ्रू दे देता हूँ। ये अपना एक सिंपल सा क्लास ट्राइनोड है यार, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ट्राइनोड इनिशियलाइज डिक्लेयर किया है, एंड ऑफ वर्ड डिक्लेयर किया है, बाद में कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन से दोनों को इनिशियलाइज किया, ठीक है। ट्राइनोड जो 26 है, हाँ ठीक है, ओके। व्हाट एल्स वी हैव, क्लास सोल्यूशन में हमारे पास वर्ड ब्रेक है, जिसमें हमने एक सबसे पहले रूट नोड बनाया, फिर हमने पूरा ट्राई बिल्ड किया, उसके बाद हमने एक फंक्शन कॉल किया कैन सेगमेंट स्ट्रिंग। कैन सेगमेंट स्ट्रिंग ये थोड़ा सा मॉडिफाइड थिंग है हमारे सर्च फंक्शन का। तो पहले इंसर्ट को देखते हैं। इंसर्ट को क्या किया हमने एक जो रूट नोड है हमने उसको करंट मार्क किया, और फॉर ऑल द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन दिस वर्ड हमने हर बार इटरेट किया और उसकी इंडेक्स निकाली, क्योंकि हमारे पास क्या था, ट्राई 0 से 26 था, राइट। तो हम यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट ए, तो हम इसको कैसे मैप कर रहे हैं, CH-A करके। अगर A-A कर देंगे तो 0 मिल जाएगा, सिमिलरली B-A कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। ये तुम चाहते थे कि 1 पे B1 है, एंड सिमिलरली 26 पे Z। देन इफ करंट डॉट चिल्ड्रन इंडेक्स इक्वल्स टू नल, अगर रूट का वो पर्टिकुलर एंट्री, राइट, रूट में जैसे मैंने लाइक इंसर्ट किया था, अगर ये एल की एंट्री नल है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक एंट्री बनाओ और करंट को आगे मूव करा दो, और जब पूरा फॉर लूप खत्म हो जाए देन मार्क द एंड एज ट्रू, ठीक है यार। कैन सेगमेंट स्ट्रिंग पे चलता है जो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो हमने एस डॉट लेंथ का स्टोर कर लिया। अगर जो स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हैं वो खुद ही जीरो, तो डेफिनेटली कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, देन एंड देयर जस्ट से रिटर्न ट्रू। देन व्हाट एल्स वी हैव अ फॉर लूप, उसके बाद हमने क्या किया है, फॉर द गिवन स्ट्रिंग वी आर आइटरेटिंग यूजिंग द फॉर लूप, और हम चेक कर रहे हैं कि इसका जो पहला कैरेक्टर है क्या वो प्रेजेंट है ट्राई में, राइट। अगर नहीं है तो मैं देन एंड देयर करूंगा कि रिटर्न फॉल्स। जैसे अगर मेरे को सर्च करना होता लेक, तो गिवन ट्राई में मैं क्या करता कि एल तक तो आता बट ए उसके बाद नहीं मिलता मेरे को, तो मैं देन एंड देयर कहता फॉल्स। तो ये चीज उस चीज को हैंडल कर रहा है, दिस पार्ट ऑफ कोड। बट अगर प्रेजेंट है देन डेफिनेटली मूव टू इट्स चिल्ड्रन, एंड वही मैंने लास्ट में क्या कहा था, आई लाइक के एग्जाम्पल पे आई लाइक है, राइट। तो आई तक मूव करेंगे तो यहाँ एंड ऑफ वर्ड फॉल्स मिल जाएगा, राइट। तो मैं चेक करूँगा, चेक करेंट डॉट इज एंड ऑफ वर्ड, मतलब आई एंड हो चुका है यहाँ पे। कॉल द सेम फंक्शन अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ द सबस्ट्रिंग दैट इज लाइक। अब लाइक के लिए कॉल करेंगे अगेन, ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न ट्रू कर देगा, क्योंकि लाइक इज एक्चुअली प्रेजेंट, करेक्ट। सिमिलरली जो सेकंड टेस्ट केस है, आई लाइक what is that, द सेकंड टेस्ट केस इज आई लाइक सैमसंग, राइट। तो मैं लिख देता हूँ आई लाइक सैमसंग। तो सबसे पहले फॉर लूप यहाँ इंटरेट होगी और इन सब के लिए फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। सो ट्रू एंड वी आर एट दिस पॉइंट। अब इसके लिए क्या होगा, लाइक सैमसंग के लिए लाइक तक हमारा वर्ड एंड हो जाएगा, और सैमसंग के लिए हमारा दूसरा रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। तो ये भी ट्रू रिटर्न कर चुका है ना, सैमसंग को ये सर्च करेगा, सो डेफिनेटली इट विल हैव सैम। सैम पे एक ट्रू वर्ड हो गया एंड, यहाँ पे देख सकते हो। देन अगेन इट विल कॉल फॉर अ रिकर्सिव फंक्शन फॉर संग, राइट। रिकर्सिव फंक्शन तभी कॉल हो रहा है जब हमारे पे एक एंड ऑफ वर्ड ट्रू मिल जा रहा है यार, तो ये भी फाइनली ट्रू रिटर्न कर देगा और ओवरऑल जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू गेट थ्रू दिस प्रॉब्लम यूजिंग आवर फंडामेंटल्स, ट्राई एंड ऑल। तो दैट इज इट यार, दैट इज इट. Let us see the code in action. So that's the try node and that's the overall solution. Let us hit the submit button. While it is submitting, what is the time and space quantity of this code? So definitely यार हम एक try build कर रहे हैं, correct? तो try build करने में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास n words हैं और उनकी सारी और लेंथ ले लेते हैं n into length. तो इतना this is the time complexity. So this is the traversal or the iteration which we'll be doing for pushing all the characters of our given string. सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, अगेन एन स्टार लेंथ ही होगा, राइट, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स को हमने फिट किया है, अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सर्च का भी कॉम्प्लेक्सिटी होगा यार, ये इंसर्ट का था, राइट। तो सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कैन सेगमेंट्री क्या कर रहा है कि जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं इन द गिवन स्ट्रिंग टू बी सर्च्ड, उतनी बार हमारा फंक्शन रन करेगा, उतनी बार इटरेशन होगी। सो आई कैन से दैट O of S, राइट, O of S,
प्लस एक रिकर्सिव स्टैक स्पेस भी आएगा यार, क्योंकि देखो ये हमने डिवाइड किया था राइट, तो ट्रू एंड फंक्शन ऑफ लाइक सैमसंग, सो इट इज दिस इज द रिकर्सिव स्टैक स्पेस, बट कंसिडरिंग दैट कांस्टेंट इट विल बी ओ ऑफ एस एंड स्पेस कम्स टू अगेन एन स्टार लेंथ, दैट वुड बी इट। एंड ठीक है, ये सबमिट हो गया। एक बार कंस्टेंट एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो एन की वैल्यू 12 है, लेंथ की वैल्यू 1100 है, ठीक है। तो अगर आप 12 इंटू 1100 करोगे तो जो भी नंबर आएगा दैट मस्ट बी लेस देन 10 पर इट, तभी ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हुआ और टीएलई हमें नहीं मिला। ठीक है यार, तो ये क्वेश्चन आज खत्म हो चुका है एंड वी हैव डन दिस क्वेश्चन फ्रॉम आवर फंडामेंटल्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ट्राई, राइट। तो कोई भी एडवांस लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है यार, जो चीज़ समझ में आती है हमें उससे काम करना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं कल के पीरियड वीक में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक द प्रॉब्लम सॉल्यूशन इंट्यूशन एवरीथिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बटन दबाना है यार आपको, उससे मेरी बात हेल्प हो जाएगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।